Hi all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this amazing series called Pre-RMO Classics, wherein we discuss some amazing problems related to pre-RMO. And this one is a mixture of pre-RMO as well as JEE, and we're going to solve this question using two methods. ठीक है, सो एक है नॉर्मल तरीका जिसे आई एम वेरी श्योर तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और आंसर भी निकल चुका होगा. And the one is an awesome way of the world of complex numbers, जो कि एक ऐसी चीज़ है कि जो एग्जिस्ट नहीं करती बट उसकी हेल्प से या उसकी एप्लीकेशन से चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं. एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एप्लीकेशन. एंड माइंड यू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस या उसके रिलेटेड क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड सो ऑन प्री-आरएमओ में आ चुके हैं. एंड सो कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज वन टॉपिक. अगर तुम कर लो so again it is always beneficial because there is a chance that उसके आयटा या ओमेगा के क्वेश्चंस दोबारा से आ जाएं because इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं. So we'll try to do this using two awesome methods, guys. One is a super awesome using complex number, and the method number two is normal solving. ठीक है, so let us start with giving you an awesome experience of complex number. Those who have experienced complex number, they'll be able to appreciate this a lot, guys. देखो क्या है, x plus 3x minus y upon x square plus y square is 3 and y minus x plus 3y upon x square plus y square is equal to 0. Now guys, यहाँ पर एक observation है कि अगर एक complex number, if a complex number z is x plus iota y, mod of z का whole square is x square plus y square. And there is one more thing. अगर z x plus iota y तो 1 upon z is 1 upon x plus iota y. This is actually x plus iota y. This is actually x minus iota y upon x square plus y square, because we know that z into z bar is mod of z का whole square. तो यहां से 1 upon z का वैल्यू होता है z bar upon mod of z का whole square, मतलब कि z conjugate अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मतलब कि x माइनस आयटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज समथिंग जो कि ज्यादातर बच्चों को पता होता है अगर तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर किया हुआ है तो. नाउ गाइस, क्या करते हैं, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसको करने की कोशिश करें. द आइडिया इज मुझे x प्लस आयटा वाई जनरेट करना है. तो क्या करते हैं, यहां पर इस इक्वेशन को आयटा से मल्टीप्लाई करके लेट अस ऐड. So we'll add these two equations by multiplying the second equation by iota. So x plus iota y will be there on the left hand one side, plus यहाँ देखो 3x minus y minus iota times x plus 3y upon x square plus y square is equal to 3 plus 0 iota. And if I try to simplify this, इसको simplify करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर सिर्फ यहां देखो x plus iota y, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म विल बी 3 times x minus iota y और x minus iota y, दैट मीन्स 3 times ये हो गया. एंड यहां पर बाकी क्या बचा, एक तो माइनस वाई बचा, एक माइनस वाई बचा और एक यहां पर माइनस आयोटा एक्स बचा, माइनस आयोटा एक्स. एंड गाइस यहां पर भी अगर मैं माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूं, कहने से दिस विल बी लेफ्ट विद एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई ओनली. ध्यान से देखो. सो माइनस वाई यहां पर अगर मैं आयोटा माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूं, सो आई विल बी लेफ्ट विद, यहां पर देखो ध्यान से, आई विल बी लेफ्ट विद ये चीज, एग्जैक्टली सेम चीज है. Do you all agree? Because माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा and iota square will again give it a minus sign. तो यहां पर माइनस आयोटा टाइम्स x माइनस आयोटा y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3. नाउ गाइस, इसी चीज को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे. We'll use this and the fact that 1 upon z is x minus iota y upon x square plus y square. So अगर मैं x minus iota y upon x square plus y square को अलग कर दूं, कहना सा है ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, this middle term, this can be simplified or written as 3 minus iota upon z. 3 minus iota upon z, because 1 upon z, which we have already proved, this is equal to x minus iota y upon x square plus y square. इसको एक बार दोबारा से डिटेल में लेते हैं. So we have x plus iota y, वापस चलते हैं. यहां पर अगर मैं x minus iota y कॉमन ले लेता हूं, x minus iota y कॉमन, I'll be left with, यहां पर I'll be left with 3 minus iota upon x square plus y square is equal to 3.
So this is what I'm left with. And now guys, मैंने यहाँ पर already prove कर दिया हुआ है that if z is equal to x plus iota y, 1 upon z is going to be z bar upon mod of z whole square. In other words, this is going to be x minus iota y upon x square plus y square. So यहाँ से यही चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? This will get converted into z plus 3 minus iota upon z is going to be equal to 3, and if I make this a quadratic, z square minus 3z plus 3 minus iota is going to be equal to 0. So this is a quadratic in z. Now if I solve this, अगर मैं z को solve कर लूं and z is nothing but x plus iy, तो मेरे पास क्लियरली x और y का डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा और कुछ नहीं करना. सो दिस इज एन अमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. और अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ चुकी है, ये तभी समझ में आएगी अगर तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़ा बहुत कर लिया है 11th की क्लास से. एंड अगर तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस मेथड. एंड इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट. एंड अगर तुम पुराने बच्चे हो तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ गाइस, यहां से z का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. अब z को हम क्वाड्रेटिक से निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से. z का वैल्यू इज गोइंग टू बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर. नाउ d, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं. इसका डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4, सॉरी बी स्क्वायर इज 9. बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 b square minus 4 into 3 minus iota. So this is going to be 9 minus 12 plus 4 iota, or this is going to be minus 3 plus 4 iota. So z is 3 plus minus 3 plus 4 iota upon 2. ये चीज हो गई. Now guys, इसके बाद you should also know one more concept of complex number, that is square root of complex number, which is a very common concept in NCERT also. NCERT में RD शर्मा में इस तरह के concept बहुत ढेरों से लिखे हुए हैं. So इसका हमें square root निकालना है. Let इसका square root be alpha plus iota b. This is minus 3 plus 4 iota. तो ये बहुत ही सिंपल है. या तो अगर फॉर्मूला याद किया हो तो फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो. अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा. तो यहां से क्लियरली अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 3 है एंड टू अल्फा का बीटा का वैल्यू 4 है. तो इस केस में जनरली हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, दैट इज यहां पे लिख लेते हैं. सो द आइडेंटिटी दैट वी यूज इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. इन दोनों के वैल्यूज पता है. अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज माइनस 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका स्क्वायर मतलब कि 4 स्क्वायर. दिस इज 5 स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 5. तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5 आ गया एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 3 ऑलरेडी है. इनको जैसे ही ऐड करें 2 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 2 है एंड अल्फा का वैल्यू 1 आ गया या प्लस माइनस 1. सो अल्फा बिकम्स प्लस माइनस 1 और अल्फा अगर 1 है, यहां पे जैसे ही पुट किया अल्फा 1 तो बीटा का वैल्यू 2 है. सो एक स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 आएगा एंड दूसरा स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 आएगा विद प्लस माइनस साइन. सो एक स्क्वायर रूट क्या आ गया 1 प्लस 2 आयोटा. सो 1 प्लस 2 आयोटा इज 1 स्क्वायर रूट विद प्लस एंड माइनस साइन. तो यहां पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, सो दिस विल बी 3 प्लस माइनस ऑफ, ये वाले पुट कर दें 1 प्लस 2 आयोटा बाय 2. तो यहां पर ना z की दो वैल्यूज आ रही हैं. सो वन वैल्यू इज 3 प्लस, अगर मैं प्लस वाला साइन लेता हूं तो प्लस वाला साइन के साथ जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 1 4 प्लस 2 आयोटा बाय 2 एंड माइनस के साथ 3 माइनस 1 2 माइनस 2 आयोटा बाय 2. सो एक वैल्यू इज गोइंग टू बी 2 प्लस आयोटा, एक z का वैल्यू इज गोइंग टू बी 2 प्लस आयोटा एंड दूसरा z का वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 माइनस आयोटा. तो इसका मतलब एक पेयर x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1. सो 2 1 इज गोइंग टू बी वन पेयर एंड x का वैल्यू 1 y का वैल्यू माइनस 1 इज गोइंग टू बी द अदर पेयर. सो देयर आर 2 पेयर्स, that means 2 1 and 1 minus 1. These are the two pairs which satisfy both of these equations. तो दो आंसर्स आ चुके हैं एंड दिस वाज यूजिंग एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आई होप यू एंजॉयड दिस. अगेन ऑब्जर्वेशन यहीं पर थी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा था, तो मैं को कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाने की कोशिश की, तो इस इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया एंड कॉन्जुगेट बन गया. एंड दिस वाज वन सिंपल मेथड टू डू दिस. आई होप यू एंजॉयड दिस.
फॉर दोज हु डू नॉट नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि क्लास 8, 9 और 10th में हैं, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़ा हुआ, वो सोच रहे होंगे कि सर ये चीज़ तो आती नहीं है, तो क्या अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, राइट? दिस इज मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन को करने के अंदर मल्टीपल वेज, एंड लेट अस डिस्कस द अदर वे इफ यू डू नॉट नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आता गाइस, तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन है। क्या करो यहां पर, सिंस इस तरह पे देखो 3x माइनस वाई, यहां पे x प्लस 3y, तो यहां पर ना इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इक्वेशन बिकम्स xy प्लस, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, पहले इक्वेशन लिखो उसके बाद देखते हैं। सो दिस इज 3xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, xy माइनस ऑफ, यहां पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3xy आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें यह डिसाइड करना है, डू वी ऐड, डू वी सब्ट्रैक्ट, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एक्स वाई खत्म हो रहा है और यहां पे हो सकता है कुछ सिमेट्रिक सा बन जाए, बट अगर मैं ऐड करता हूं, इफ आई ऐड, तो यहां पर दिख रहा है जो 3xy है ना, और ये 3xy ये कैंसिल हो रहा है, और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी बहुत सिंपल सी टर्म बन रही है। सो ऐड करने के यहां पे अलग फायदे हैं। सो इफ आई ऐड दीज टू, सो 2xy ऐड करेंगे, यहां पे देखो 3xy से 3xy कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3y। 2xy माइनस 1 इज इक्वल टू 3y। सो ये एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया इन x एंड y। सो जैसे ही सिंपल इक्वेशन बना, बेसिकली दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स तो थे, तो हमें पता था कि ये दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो गिवन थी, बट जो इक्वेशन थी ना वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थी। सो उसको मैंने सिंप्लीफाई करके एक बहुत बढ़िया सी, हालांकि ये भी इक्वेशन टू वेरिएबल्स की है, बट ये बहुत ही सिंपल, दिस इज रिलेटिवली सिंपलर देन दीज टू इक्वेशंस। तो इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ये लेता हूँ और एक इक्वेशन ये लेता हूँ, बिकॉज राइट साइड में 0 है, तो इनको सिंप्लीफाई करके x और y आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ वी हैव टू सॉल्व दिस, 2xy माइनस 1 इज इक्वल टू 3y, सो 2xy, जस्ट वेरीफाई, माइनस 1 इज इक्वल टू 3y, एंड दूसरी इक्वेशन ये y इज इक्वल टू x प्लस 3y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से किसी भी एक वेरिएबल को हटा के हम चीजें निकालते हैं। तो अगर मैं यहां से x को हटाता हूं, x इज 3y प्लस 1, x इज 3y प्लस 1 अपॉन 2y, और x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा ना 3y प्लस 1 अपॉन 2y, यस। सो x इज दिस। सो लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ x हियर बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। सो x स्क्वायर y प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 3y, एंड x का वैल्यू पुट करते हैं दोनों तरफ। x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर इंटू y प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x, 3y प्लस 1 अपॉन 2y प्लस 3y। तो यहां से एक y कैंसिल। सो अगर मैं 4y एलसीएम ले लेता हूं, सो दिस विल बी 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4y एलसीएम, तो यहां पर बन जाएगा 4y टू द पावर 4, 4y एलसीएम, 4y एलसीएम तो 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू 3y प्लस 1 प्लस 12y स्क्वायर। सो दिस विल बी द इक्वेशन। एंड यहां पे एक और बहुत बढ़िया सी चीज दिख रही है, दैट यहां पे चलो 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y प्लस 4y4 इज इक्वल टू 6y, जो कि कैंसिल हो रहा है, प्लस 2 प्लस 12y स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन बचेगी ना, वो एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसके अंदर सिर्फ y स्क्वायर और y4 वाली टर्म्स होंगी। सो इफ वी लुक एट दिस इक्वेशन, इट विल बी 4y4, ये वाली टर्म, 9y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, सो माइनस 3y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 4y4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर कॉमन, y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, y स्क्वायर माइनस 1। तो भैया यहाँ से y की दो वैल्यूज आ गई, तो यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू या तो माइनस 1/4 है या फिर y स्क्वायर का वैल्यू 1 है। ये हो नहीं सकता, इसका मतलब y का वैल्यू इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 1, एंड वी हैव आवर आंसर्स। सो अगर y 1 है, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3 इंटू 1 प्लस 1, x का वैल्यू इज गोइंग टू बी 4/2, मतलब कि 2। एंड अगर y माइनस 1 है, x का वैल्यू इज गोइंग टू बी माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 2, एंड इट इज गोइंग टू बी माइनस 2 अपॉन माइनस 2, दैट इज 1।
तो एक पेयर इज गोइंग टू बी 1 comma minus 1 and the second pair is going to be 2 comma 1. So these are the two pairs. In fact, अगर तुम रिकॉल करो यही दो पेयर्स है जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड से भी निकाले थे. जस्ट लेट अस वेरीफाई. सो एक था 2 comma 1 and 1 comma minus 1 एंड यहाँ पर भी 2 comma 1 and 1 comma minus 1. So again, if you know complex number, बहुत बढ़िया. I think you've learned a new concept. If you don't know complex number, you have learned how to solve this यूजिंग मैनिपुलेशन. सो मैनिपुलेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है स्पेशली प्री आरएमओ टाइप के क्वेश्चंस के अंदर. एंड यू नीड टू लर्न मैनिपुलेशन. इसको लर्न तो क्या मतलब, इसको करने का एक ही तरीका होता है इफ यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज आइडियाज जितने ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा जल्दी दिमाग खुलेगा. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. तो लाइक करना मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय.